So the first question of miscellaneous exercise is कि evaluate करना है आपको I raised to 18 plus 1 upon I whole raised to 25 and then पूरे ब्रैकेट के अंदर it's 3. So पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर दो. So you get I raised to 18 plus I raised to minus 25 and इसका क्यूब. Now how will you go further? I raised to 18 को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो what should you do? I raised to 18 किसके इक्वल है? I power 16 plus I power 2. Yes, so I square I raised to 16 is 1. Yes. So it's going to become I square. I square की वैल्यू क्या थी? -1. Yes, this is -1. Now plus I raised to minus 25. What is I raised to minus 25? I raised to minus 25 कितना होता है? I raised to minus 24 into I raised to 1. हाँ, Minus या 1. अगर आपको इस तरह डिफिकल्टी हो रही है then what you can do? You can do it as 1 upon I raised to 25. आप ऐसे ही कर सकते हो. तो अब तो पता है I raised to 24 and I. So this is going to be 1 upon I. What is 1 upon I? This you remember. What is 1 upon I? 1 upon I मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया था. 1 upon I is equal to minus I think. आपको लिखवाया हुआ है, चेक करो. Take minus negative I. sign common. Take negative sign common. So 1 plus I का whole cube. Since it is cube तो negative sign रहेगी ही रहेगी. ठीक है? चलो minus and then you can simplify. A का cube plus B cube plus 3 1 का square I plus 3 1 I square. Now put the value and get the answer. आपका आंसर आना चाहिए minus inside the bracket. 1 minute. Sorry. 1 plus I cube. I cube की वैल्यू कितनी होती है? minus I. Keep it as minus I. Then 3 1 का square and I. So 1 का square is 1 and so this becomes plus 3I. ठीक है? And ये कितना हो जाएगा? I square is -1. तो ये हो जाएगा -3. So finally what you get? Minus, this is -2 plus 2I. Yes or no? You can take -2 common और एक ऑलरेडी माइनस था, so this is become going to be plus 2 into ये 1 हो जाएगा. This is minus I. This is the final answer. ये स्टेप समझ में आया? मैंने -2 कॉमन लिया, एक माइनस ऑलरेडी है तो वो +2 हो गया. Done? Shall we move on to the next question? Yes, ma'am. Okay. Next question. For any complex numbers Z1 and Z2, prove that real Z1 into Z2 is equal to real Z1 into real Z2 minus imaginary Z1 minus into imaginary Z2. ठीक है, ये प्रूव करना है. तो आप कोई भी Z1 ले लो. Z1 is equal to, you can take A1 plus IB1 and Z2 you can take as A2 plus IB2. ठीक है. Now what is your left hand side? Left hand side is equal to real Z1 into Z2. ठीक है. अब Z1 into Z2 कितना होगा? First find out that. Z1 into Z2 कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट.
What is Z1 into Z2? A1 A2. Yes, multiply करना है बेटा. I am putting the bracket A1 plus IB1 into A2 plus IB2. So A1 A2 plus I times A1 B2 plus I times A2 B1 plus, actually I am writing plus I square आएगा, उसकी जगह माइनस लिख देती हूँ, माइनस B1 B2. ठीक है. Yes. सो अब रियल पार्ट को एक साथ कर दो एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दो. A1 A2 माइनस B1 B2 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? दिस गोइंग टू बिकम A1 B2 प्लस A2 B1. This is going to be imaginary part. This is Z1 into Z2. Now real Z1 into Z2 कितना हो जाएगा? What will be real Z1? It's going to be A1 A2 minus B1 B2. ये हो जाएगा. And put it in a box. ठीक है, इसको एक बॉक्स में डाल दो. Now what is your right hand side? राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है आपको? रियल Z1 Z into real Z2 minus imaginary Z1 into imaginary Z2. Okay, so what is real Z1? A1 into real Z2 A2 minus B1 into B2. Yes or no? Yes. So therefore here left hand side is equal to right hand side. That is whatever you wanted to prove. Real Z1 into Z2 is equal to real Z1 into real Z2 minus imaginary Z1 into imaginary Z2. ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया. Hence proved. ठीक है. Yes, ma'am. चलो next, moving on to question number 3. इसे आपको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. दिखने में बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा. सो फर्स्ट पहले ये वाला ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस i एंड 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट यू गेट? 1 माइनस 4 टाइम्स i और यहाँ पर 1 प्लस i और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस i माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 4i एंड इस साइड 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस i माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़र 8i अपॉन ये भी मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1 1 देन प्लस i देन माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर. शुड आई राइट i स्क्वायर और प्लस कर दूं? क्या करूं बोलो? नाउ इफ आई डू डायरेक्टली विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. जहां जहां i स्क्वायर आएगा उसको मैं -1 डायरेक्ट करूंगी. ठीक है. नाउ 1 माइनस 2 सो आई गेट -1 प्लस 9i एंड डिनोमिनेटर में
दिस इज गोइंग टू बी +4 + 1 5 -3i एंड इसे यहाँ पर 3 - 4i अपॉन 5 + i। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर। चलो डिनोमिनेटर लिख देते हैं, 5 5s are 25 + 5i -15i एंड -3i स्क्वायर। -3i स्क्वायर मतलब +3 हो जाएगा। -3 +4i +9 3s are 27i एंड -36i स्क्वायर। -36i स्क्वायर को +36 लिख रही हूं मैं, ठीक है। सो फाइनली व्हाट यू गेट, -3 + 36, so you get +33 plus 27 plus 4 31i अपॉन डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है 28, 25 + 3 28 -10i। अब डिनोमिनेटर में i जो है वो एलर्जिक है, i नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 + 10i से, ठीक है। तो चलो अभी 28 + 10i से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। तो नीचे तो मुझे पता है क्या आएगा, नीचे 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784 एंड -10i स्क्वायर, -10 10s are 10 का स्क्वायर 100 और ये i का स्क्वायर +100, ठीक है। ऊपर कितना होगा, मल्टीप्लाई 33 × 28 कितना होता है, चलो टेल मी फास्ट। 33 × 28, हाँ 924 अभी मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर नहीं किया ना, कैलकुलेट किया था। हाँ 31 × 28, 28 × 30 + 28 करो, चलो मल्टीप्लाई करना है। $868 868 ओके 868। आई हैव नॉट वेरीफाइड, हाँ आपने जो बोला है मैंने वही मान लिया है। 31 × 28 करना था ना, हाँ 31 × 28, हाँ तो सही है, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों, इन तीनों को, एक्चुअली व्हाट वी विल बी 924 + 868 और ये -310 हो जाएगा, i स्क्वायर मतलब -310, ठीक है, एंड +330i। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई कर दो, चलो 924 + 868 -310, एक मिनट, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर आई आना चाहिए, आई थिंक सो। ये आई वाला है टर्म, सो देयर विल बी अ चेंज, यहाँ पर 924 -310 आई स्क्वायर वाला एंड देन +868i एंड 330i। यहाँ पर मैं आई भूल गई थी, so you get this, इन दोनों को माइनस करो तो आई एम गेटिंग 614 प्लस इन दोनों को ऐड करे तो 1198i, राइट। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर से भी
2 कॉमन निकल सकता है, नीचे से भी 2 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों से 2 कॉमन निकाल लो, सो 307 प्लस 599 आई अपॉन 442 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 इंटू आई। हाँ, Yes, ma'am. this you got the standard form. Question number 1, 2, 3 done. Clearing it, huh? Question number 4. X is equal to, sorry, x minus iy is equal to under root of a minus ib upon c minus I into d. आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है, ठीक है। दिस यू नीड टू प्रूव। स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी इंटू c प्लस आई डी c माइनस c प्लस आई डी। रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर क्या मिलेगा? यू गेट ए सी प्लस ए डी इंटू आई माइनस बी सी इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आएगा तो उसे मैं प्लस कर रही हूँ और बी डी लिख रही हूँ। माइनस आई स्क्वायर इज प्लस 1, सो आई स्क्वायर जो है आई स्क्वायर इज नेगेटिव 1 एंड माइनस आई स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमेशा याद रखना, जहां जहां नेगेटिव आई स्क्वायर आएगा वहां पर मैं प्लस 1 लगाऊंगी और जहां आई स्क्वायर आएगा वहां माइनस 1, ठीक है। Yes. ओके, तो नाउ व्हाट यू गेट, आपका x माइनस आई वाई कितना आ गया? यू गेट अंडर रूट ऑफ ए सी प्लस बी डी एंड इसमें आई कॉमन ले लो, सो यू गेट माइनस बी सी प्लस ए डी प्लस आई कॉमन, तो यहाँ पर भी ए डी माइनस बी सी एंड होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ अब इसके बाद आपको यू वांट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा कहां से? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां से आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर इफ यू ऐड एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखो c प्लस आई डी किया, c प्लस आई डी एंड c माइनस आई डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो? Yes. तो यहाँ पर वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस आई सॉरी एक्स माइनस आई वाई, तो इसके ऊपर से x प्लस आई वाई उसका कॉन्जुगेट कितना होगा भाई?
व्हाट विल बी इज कॉन्जुगेट? AC प्लस BD, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आई, और ये AD माइनस BC होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. यस और नो? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये दोनों हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट विल बी दिस? इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. यू गेट AC प्लस BD प्लस I टाइम्स AD माइनस BC होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर into अंडर रूट ऑफ AC प्लस BD माइनस I टाइम्स AD माइनस BC होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ये मिल रहा है आपको? यस. यस. नाउ इस दोनों का स्क्वायर कर दो आप, बिकॉज यू वांट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो इस साइड स्क्वायर किया तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा. तो स्क्वायर करोगे तो रूट उड़ जाएगा. यस और नो? सो व्हाट यू गेट? यू गेट AC प्लस BD प्लस I टाइम्स AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. एंड यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एक ब्रैकेट में आपको ये मिल रहा है, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग AC प्लस BD माइनस I टाइम्स AD माइनस BD होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. आर यू गेटिंग दिस? यस. यस. ये मल्टीप्लिकेशन में है भाई. ठीक है. ब्रैकेट खोलोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सिंस नेगेटिव है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी. तो AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस I स्क्वायर है तो माइनस I स्क्वायर की जगह प्लस एंड AD माइनस BC का होल स्क्वायर. एंड डिनोमिनेटर में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर. यस और नो? यस. यस. So now if you simplify, ये आपको A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACBD, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ADBC. तो ये और ये तो कट हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज. C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर. आई होप आपने इतना लिख लिया है. इफ यू हैव रिटन दिस मच देन आई विल रब इट आउट. यस. एटलीस्ट इतना मैं रब कर सकती हूँ. एंड आंसर इतना ही है ना. राइट. सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर. राइट. ऊपर कुछ कॉमन, इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन ले लो. सो यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसमें सी स्क्वायर कॉमन आया. ठीक है. देन इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो अगेन यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, सॉरी डी स्क्वायर कॉमन. एंड नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब क्या हो जाएगा?
You get a square plus b square into c square plus d square, और नीचे c square plus d square 2 बार, and this gets cancelled. This is equal to RHS. One method is this much big. Normal जाते हो तो. अब shortcut trick बताऊं? Yes. बहुत बड़ा हो गया ने. अरे मैम, JEE में कैसे करेंगे इतना बड़ा? x minus iy कितना है? अंडर रूट a माइनस ib अपॉन c माइनस id. तो x प्लस iy कितना होगा? दोनों जगह प्लस. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. x माइनस iy इधर एंड x प्लस iy इधर. So what you will get? सब अंडर रूट के अंदर a माइनस ib into a plus ib whole divided by c minus id and c plus id. यहाँ पर क्या हो जाएगा? You get x square plus y square. Yes or no? Yes. और इधर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला a square plus b square, c square plus d square. Yes or no? Yes. अब x square plus y square का होल स्क्वायर ढूंढना है, तो इस साइड से रूट हट गया. So what you get? A square plus b square upon c square plus d square is equal to RHS. हो गया? Yes. सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पर आप प्लस ले रहे हो, कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो यहाँ दोनों की साइन चेंज करोगे. सिर्फ एक की साइन चेंज करोगे तो नहीं चलेगा. ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes. चलो. I hope you have written both, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. का फर्स्ट पार्ट. ठीक है? 1 plus 7i and 2 minus i का whole square. This is your z and you have to express z in polar form. कौन से फॉर्म में? पोलर फॉर्म में. So what will be my z? My z will be 1 plus 7i upon 2 का स्क्वायर 4 minus 4i plus i square. प्लस आई स्क्वायर की जगह -1, तो 4 minus 1 3 बच जाएगा. दिस इज माई z. रैशनलाइज करना पड़ेगा. So you get 9 plus 4 का स्क्वायर 16 एंड ऊपर क्या आ जाएगा? 1 into 3 3 plus 4i plus 21i plus 28i square. Now ये -28 plus 3 -25 and this is plus 25i and whole divided by 25. Yes or no? तो फाइनली आपका z कितना हो जाएगा? My z will be -1 plus I. Are you getting this? Yes. My z is this, -1 plus I. So what is my x? X. What is my x? Yeah, a. Compare -1. -1 and y is equal to 1. Yes.
ओके, मॉड्यूलस ऑफ z कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 √2 1 + 1, यस √2। ठीक है, अब तो इजी है। कौन सा yes क्वाड्रेंट है भाई? कौन सा क्वाड्रेंट? √2 x is first negative, y is positive. Which quadrant? second Yes. Z is in second quadrant. Second quadrant में क्या है? थीटा इज इक्वल टू alpha y माइनस अल्फा। yes हाँ, yes ओके। चलो पहले अभी अल्फा ढूंढो। अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स, y 1/-1। लिखूं y बाई एक्स लिखूं कि चलेगा? चलेगा Actually I should write alpha is equal to tan inverse is equal to tan inverse 1/-1। tan inverse 1, tan inverse 1 क्या होता है? What is alpha? 45 degree Yes, 45 means pi by 4। ठीक है, from this you will get theta. What is theta? Pi 3 pi minus pi by 4। 3 pi by 4 Yes, 3 pi by 4। and what is this theta? इस theta का नाम क्या है? arc z, आर्गुमेंट बोलते हैं ना yes इसको। yes yes or no? yes और पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? What is the polar form of z? r r cos theta plus y sin theta I sin theta. So what is r? √2 cos pi by 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4। Answer? You got it. यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाने में मिस्टेक की। ये r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस I sin थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट मैंने yes करवाया, ma'am सेकंड आप होमवर्क में खुद करोगे। ठीक है, okay ma'am चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन सॉल्व करना है। आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी। इक्वेशंस तो आपको आते हैं। 3x² - 4x + 20/3 = 0। व्हाट इज a? 3। b कितना है? -4 and c is 20/3। तो d कितना हो जाएगा? b² - 4ac a 3 c 20/3 गया। so what you are getting? -4 का स्क्वायर 16 - 80 कितना होता है? -64 एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? -b + -√d/2a माइनस ऑफ b मतलब +4 प्लस माइनस √8i। अंडर रूट तो निकालना ही 64 का ही है ना, तो 64 का रूट yes कितना हो जाएगा? 8i डायरेक्ट लिख देती हूँ। 8 रूट नहीं आएगा बेटा। रूट डी yes जो ma'am है इज अंडर रूट -64, तो 64 का रूट तो 8 होता है और -√1 का i। ठीक है, yes
तो रूट डी की वैल्यू डायरेक्ट लगाई अपॉन 2 इंटू ए, मतलब 2 3 जार 6, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 3, दिस इज द आंसर। इसे आप 2/3 प्लस माइनस 4/3 i भी लिख सकते हो। 7 8 9 होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, बाकी के 3। यस मैम। यस, यस। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस आपको ढूंढना है। तो आई एम पुटिंग डायरेक्टली द वैल्यूज। Z1 कितना है 2 माइनस आई, प्लस Z2 कितना है 1 प्लस आई एंड प्लस 1, होल डिवाइडेड बाय, पुट द वैल्यू Z1 2 माइनस आई, ठीक है, माइनस Z2 की जगह 1 प्लस आई and plus 1. If you simplify, plus I minus I gone. So 2 plus 1 3 plus 1 4, और नीचे कितना आएगा 2 minus I minus 1 minus I plus 1, यहाँ पर plus 1 minus 1 gone. So आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, here you get 4 upon 2 minus 2i, 2 कॉमन ले सकते हो। यस। यस, 2 कॉमन ले लो तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे 1 माइनस आई का मॉड, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो मॉड 2 अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस आई, सेपरेट आउट कर सकते हैं मॉड, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, ठीक है। यस। यहाँ पर अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इसका मॉड्यूलस निकालोगे, इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट √2, ठीक है। तो 2 अपॉन √2 इज द आंसर। एंड अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो फाइनल आंसर इज √2। ठीक है ना, बाकी के सम आप एक बार ट्राई करोगे, कल टुमारो विल बी लास्ट सेशन, जो डाउट्स होंगे वही करवाऊंगी कल, ठीक है।